regarded as the greatest writer in English language. He is often called England's national poet. ایک پہ کلک کریں تو سبجیکٹ پر کلک کریں گے چیپٹر وائز سبجیکٹ بھی کلک کریں. تو اس سے پہلے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ڈائٹ کرگل کے پرنسپل محمد علی بھٹو صاحب. اب جو ہے ولایت صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں, اور ولایت صاحب ممبر ہیں جو یہ جو آن لائن ایجوکیشن ایپ جاری کیا ہے اس کے ڈیزائن جو انہوں نے کیا ہے اس کے ممبر ہیں. تو ولایت صاحب سے ہم ایپ کے بارے میں جو آن لائن ایجوکیشن ایپ ہے پلے اسٹور پہ جو DSEL کے نام سے موجود ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم ان سے جانکاری لے لیں گے. ولایت صاحب, آپ اس ایپ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو اور گلستان دیکھ رہے سبھی ویورز کو اس ایپ کے بارے میں جانکاری دی دیجیے, اور ان پیرنٹس کو جن لوگوں نے ابھی تک یہ جو ایپ ہے اس کو یوز نہیں کیا ہے, انسٹال نہیں کیا. شکریہ اسحاق صاحب. سو یہ ایپ جو ہے DSEL آن لائن ایجوکیشن ایپ, جب آپ پلے اسٹور میں جائیں گے تو یہ پورا ورڈس جو ہے لکھنا پڑے گا DSEL آن لائن ایجوکیشن, تبھی جو ہے یہ ایپ جو ہے نکل کے آ جائیں گے. تو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو ایزیلی چلا سکتے ہیں. یہ ایپ باقی جو فار ایگزامپل یوٹیوب پہ لیکچرز موجود ہے اس سے کیا ڈفرینٹ ہے, اس میں اس سے کیا اس ایپ میں کچھ خاص ہے. تو اس کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ یوٹیوب پہ بہت سارے ٹاپکس آپ کو ملیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزیں اس کے پاس آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسٹریکٹ ہو کے باقی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک اپنے سبجیکٹ پہ جو جس کنٹینٹ پہ اس کو فوکس کرنا ہے وہ فوکس نہیں کر پاتا ہے, اور ایزیلی جو فار ایگزامپل ایک سبجیکٹ میں ہم نے پڑھنا ہے, میتھمیٹکس پڑھنا ہے, تو میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو آپ دیکھیں گے تو ساتھ ساتھ میں اور سارے ویڈیوز آئیں گے جو میتھمیٹکس پہ فوکس نہیں ہوگا, تو اس وجہ سے بچے کا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا اور اس کا ایک جگہ پہ فوکس نہیں کر پائیں گے. تو اسی لیے یہ ایپ میرے خیال سے بہت ہی ایک امپورٹنٹ یوزر فرینڈلی ایپ ہے, جس میں بچے ایک ہی ایپ سے سارے جو اس کے کنسرن سبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن لے سکتے ہیں, اور اس ایپ کو بالکل ایزیلی اوپن کر سکتے ہیں. کوئی لاگ ان پاسورڈ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے, کوئی کمپلیکیشن اس میں نہیں ہے, تو وہ ایزیلی اس کو اوپن کر کے جو اس کا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں اس کو پڑھنا ہے اور جس کلاس کا وہ ہے وہ اس کو کھول کے اس سے ریلیٹڈ سارا لیکچرز جو ہے وہاں سے دیکھ سکتا ہے, اور ایک فوکس طریقے سے وہ اپنے سلیبس کے حساب پڑھ سکتا ہے. تو یہ ایپ جو ہے سلیبس کے حساب سے ہے, ایز پر دا سلیبس آف JK بوس, اس کے حساب سے جو بچوں کے لیے ہے. تو لیٹسٹ سلیبس کے حساب سے سارے ٹیچرز جو ایکسپرٹس ہیں جن کو میں بہت ہی وائٹل مانتا ہوں اس ایپ کے لیے, ان کا کنٹریبیوشن بہت ہی وائٹل ہے, کیونکہ وہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے بالکل محنت کر کے ویڈیوز بنا کے وہ لوگ والنٹری اس میں آئے ہیں. کچھ ریسورس پرسن کا ٹیچرز کا ایک گروپ ہے, تو وہ گروپ والنٹری ڈائٹ کے کہنے پہ آیا ہے, تو انہوں نے اپنے لیول پر اپنے موبائل سے جو ہے اپنے جو کیمرہ ہو موبائل ہو وہاں سے وہ ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجتے ہیں, تو ہم اس کو ویریفائی کر کے اس ایپ پہ اپلوڈ کرتے ہیں. تو ان کا امپورٹنس بہت ہے, اور ریسورس کا گروپ یہاں پہ کارگل میں بھی ہے, اور لے میں بھی ہم نے ریسورس پرسن کا ایک گروپ کریٹ کیا ہے. وہ لوگ بھی کچھ سلیبس کا کچھ پارٹ جو ہے اس سے ریلیٹڈ وہ لوگ ویڈیوز کریٹ کریں گے, تو وہ یہاں پہ بھیجیں گے, تو وہ بھی ہم اس میں اپلوڈ کریں گے. اور امپورٹنٹ بات ہے اس ایپ میں سارا 1st to 8th کلاس کا سارے سلیبس کا ٹاپکس کے سے ریلیٹڈ سارے جو سلیبس کے یا سبجیکٹ کے ٹاپکس سے ریلیٹڈ سارا ویڈیوز یا کنٹینٹس اس میں اویلیبل ہے. تو بچے کو ادھر ادھر باقی سبجیکٹ ڈھونڈنے کے لیے جانا نہیں پڑے گا, تو اسی ایپ میں سارا سبجیکٹ اس کو مل جائیں گے. تو اور اس ایپ میں ایک خاص بات اور کیا ہے, اس میں ایک جو آپ کلک کریں گے وہاں پہ مینیوز کھولیں گے تو وہاں پہ سبجیکٹ کا لسٹ آئیں گے, پھر سبجیکٹس کا لسٹ آئیں گے, کلاس کا لسٹ آئیں گے, اور اس میں ایک اسائنمنٹ کا بھی ایک پارٹ ہے. بچے جو ہے وہاں سے اسائنمنٹ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو بھر کے اپنے جو نیئر بائی ٹیچرس ہیں ان کو فارورڈ کر سکتے ہیں, ان کو دے سکتے ہیں, یا وہ واٹس ایپ کے تھرو یا ای میل کے تھرو بھیج سکتے ہیں ایکسپرٹ کو. تو اس طرح کا ایک کنیکٹیوٹی بھی بن رہا ہے. ویسے تو ہم آن لائن ایجوکیشن کو کلاس روم سسٹم اور اسکول سسٹم سے
रिप्लेस नहीं कर सकते, वो गैप हम फिल बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक स्कूल इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे बच्चे और बच्चों और टीचर में इंटरेक्शन होता है, वो सिस्टम हमें यहाँ पे देखने को तो नहीं मिल सकता है। लेकिन जो गिवन सिचुएशन है, जो हमारा आजकल का जो सिचुएशन चल रहा है, उसके हिसाब से और फ्यूचर में जो हम कुछ अंदाज़ा कुछ प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये सिस्टम जो है आगे बहुत चलने वाला है, यही सिस्टम, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि ऑनलाइन एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो सकता है डाइट के लिए, और इस पे डाइट को काम करना चाहिए। तो कुछ एक्सपर्ट हमारे यहाँ पे आया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मोहम्मद साहब इंग्लिश का लेक्चरर है, एक टेक्निकल एक्सपर्टी वो रखता है, वो आगे आया, प्रिंसिपल साहब ने हमें फिर सपोर्ट किया, तो इस सपोर्ट की वजह से और डायरेक्टर साहब ने प्रपोज़ किया, तो इस वजह से हमने इसको एनी हाउ डेवलप किया। लेकिन ये ऐप एक कंप्लीट अभी पैकेज की तरह आप नहीं देख सकते हैं व्यूवर्स, इसमें बहुत सारे स्कोप है अभी इम्प्रूव करने के लिए, और इम्प्रूव कर सकते हैं इसका स्मूथनेस। अभी तो हमने कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की वजह से जो रिसोर्स अवेलेबल था उसी की हिसाब से हमने इसको डेवलप किया है। अब फ्यूचर में हम इसको और अच्छा बनाएंगे और अट्रैक्टिव बनाएंगे और यूज़र फ्रेंडली बनाएंगे और रिसोर्स हमने इसमें इंक्लूड करेंगे, तो फ्यूचर में इस ऐप का बहुत एक स्कोप हमें देखने को मिलता है। विलायत साहब, चूँकि आप लोग डिज़ाइनर भी हैं और साथ ही साथ जो ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन लद्दाख के जो ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है, इसको आप इसके प्रोसेस को संभाल रहे हैं, कंटेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं और उसको अपलोड कर रहे हैं, तो इस बीच स्टूडेंट्स की तरफ से अभी तक किस तरह की रिस्पॉन्सेस मिल रहा है? अगर हम ओवरऑल लद्दाख की बात करें, लेह और करगिल दोनों से किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहा है, और आने वाले वक्त में आप लोग इस चीज़ को और बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजीज बनाया है? जो आपकी डिज़ाइनिंग कमेटी है या जो डाइट करगिल है या डायरेक्टर एजुकेशन लद्दाख है, उसकी जानिब से किस तरह की रिस्पॉन्स है, और स्टूडेंट्स की तरफ से खास किस तरह से? स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स जो है वो हम यही से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कुछ कॉल्स आते हैं पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, कि आपने एक ऐप लॉन्च किया है, उसमें सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कंटेंट से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है, तो इसको कैसे डाउनलोड करना है, किस तरह से मोबाइल में इसको देखना है, तो उस तरह से कुछ कॉल्स आ रहा है, वहाँ से हम पता लगा सकते हैं। तो इसका कुछ रिस्पॉन्स तो है, और साथ साथ में हमें जो ऐप्स को कितने लोगों ने डाउनलोड किया उससे भी थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है कि अभी तक जो है कम से कम थाउजेंड्स लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। अब फिर जो वीडियोस है उनसे हमें ये पता चल जाता है कि कितने व्यूवर्स आए हैं और कितने मिनट के लिए देख रहा है और कितने घंटे के लिए, या पूरा वीडियो देख रहा है, नहीं देख रहा है, कुछ पार्ट ही देख रहा है, तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका रिस्पॉन्स तो बेशक है, लेकिन इतना बेहतर रिस्पॉन्स हमें अभी नहीं मिल रहा है इसमें, और इसको एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत है, बच्चों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इसीलिए आपका मीन्स हमने लिया, आपको शुक्रिया करते हैं कि आपने इस जो है आपके चैनल के थ्रू मास तक हम पहुँचे और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो और बच्चे डाउनलोड करें, इसको यूज़ करें और अपने सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करके पढ़े, ताकि जो इस सिचुएशन में कम से कम उनको एक अल्टरनेटिव मिल सकेंगे। और इस ऐप को फ्यूचर में हम सोच रहे हैं कि इस ऐप को और अच्छा बनाएंगे और स्मूथ इसको बनाएंगे, और हमने इस ऐप को सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल के लिए बनाया है। फ्यूचर में हमारा एक्सपर्ट काम करेंगे इंशाल्लाह। इसको जो है डेस्कटॉप वर्जन भी इसको लॉन्च किया जाएगा, और साथ साथ में iOS जो एप्पल मोबाइल है उसके लिए भी डेवलप किया जाएगा। अभी प्रेजेंटली सिर्फ एंड्रॉयड के लिए ही है, यानी कि जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल हो वो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऐप जो है एप्पल मोबाइल में डाउनलोड नहीं होगा और डेस्कटॉप पे डाउनलोड नहीं होगा। तो इन दोनों वर्जन के लिए भी डायरेक्टर साहब ने भी इसको प्रपोज़ किया है कि फ्यूचर में इसको बनाया जाए, और हम इसके साथ साथ एक ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी हमारे प्रिंसिपल ने प्रपोज़ किया है कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हम किया जाए, ताकि टीचर्स को अगर लॉकडाउन ज़्यादा देर तक चलता है तो हमने काम तो करना है, तो टीचर को जो है एक ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जाए, जो टीचर्स का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उनको हम यही जो
टेक्निकलिटीज़ उसमें सिखाया जाएगा कि किस तरह से वीडियो लेक्चर बनाएंगे, किस तरह से वीडियो को एडिटिंग करेंगे, किस तरह से वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। तो उस तरह का एक हम ट्रेनिंग जो है करने की सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे विलायत साहब, जो ऑनलाइन एजुकेशन ऐप डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन लद्दाख की जानिब से लॉन्च किया है उसके बारे में जिक्र कर रहे थे। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के बारे में बात करें तो ये जो ऐप है इसको 1/5/2020 को ऑनरेबल एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख उमंग नरोला जी ने जो यूटी सेक्रेटरीट लेह से इसको लॉन्च किया है। और लगातार जिस तरह से हमने डायरेक्टर प्रिंसिपल डाइट से बात की, विलायत साहब से बात की, तो इनका कहना है कि लगातार स्टूडेंट्स की तरफ से, लोगों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से बेहतरीन सजेशंस और साथ ही साथ जो कम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं इस ऐप के हवाले से, और माना जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस ऐप से बेहतरीन तरीके से फ़ायदा ले रहे हैं। साथ ही साथ हमारे माध्यम से अपील कर रहे हैं कि उन लोगों से जिन लोगों ने अभी तक इस ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो उनसे ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो ये एजुकेशन ऐप है प्ले स्टोर में जाके DSEL ऑनलाइन एजुकेशन ऐप सर्च करना है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद जो अपना पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर सकते हैं 1st क्लास से 9th क्लास तक के लिए। ये जो शुरू किया गया है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं एक चीज़ सफ़र होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी भी टेली कम्युनिकेशन नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, और साथ ही साथ लद्दाख में बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं स्मार्टफोन के हवाले से या डेस्कटॉप के हवाले से। तो उनके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से एक जो स्ट्रेटजी और पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है ताकि हर कोई ये जो है लॉकडाउन के चलते अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। इस हवाले से डाइट के प्रिंसिपल का मानना है कि CC कारगिल की जानिब से और ख़ासकर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक जो बात चल रही है, और माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में लद्दाख के अंदर रह रहे उन लोगों के लिए भी लॉकडाउन के चलते एजुकेशन के हवाले से वो लोग भी अपनी पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर पाए। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ नए अपडेट्स के लिए। मोहम्मद इसाक, करगिल, लद्दाख।